Yes, from here we have to start. You can see in the book, the heading is this behavior of AFC, ABC, AC and MC. तो यहाँ पर AFC is not to be drawn. Only all the three U-shaped curves are to be drawn. We have to study their relation. Okay. So now, as you can see, so now meanings are already told. So I am not going to define the meanings again. Directly paper में you will get the question. What is the relation between all these three? Relation among these three. Between word यूज किया जाता है when we have to relate two things. ठीक है, दो चीजों का बीच का हो तो between या among होना चाहिए था. Anyhow, so this we have to study. ठीक है. Now let us see the shape and then we can make the points very easily. What can be the number? First point, that as output increases in the beginning, all the three cost curves they decline. अब आप देखो डायग्राम, सी द डायग्राम केयरफुली. तीनों ही कर्व्स जो हैं, ऑल द थ्री इन द बिगनिंग, ये दे आर डाउनवर्ड, दे आर कमिंग डाउनवर्ड, फॉल करती हैं. मतलब सारी ही कॉस्ट कम होती है. इनिशियली शुरुआत में जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमेशा कॉस्ट कम होती है. ठीक है, ये देखो, ये भी इट इज कमिंग डाउन, दिस इज ऑल्सो कमिंग डाउन, दिस इज ऑल्सो कमिंग डाउन. सो फर्स्ट पॉइंट विच वी कैन मेक, that in the beginning of when this output is started, so then initially all these three cost curves they come down, they decline, yeah, they diminish. उसके बाद second point, now these dotted points I told you yesterday, these are the minimum points of these curves. ये इसका marginal cost का minimum point है, ये इसका average variable का minimum point है, this is the minimum point of this average cost. So second point which can be made, that is minimum point of marginal cost comes beforehand as compared to the minimum points of ABC and AC. ठीक है, ये पहले आता है. क्यों पहले आता है? बिकॉज द रेट ऑफ फॉल ऑफ MC, ये देखो इसके गिरने की स्पीड ये सबसे नीचे है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा तेजी के साथ इसकी वैल्यू कम होती है. बाद में आप टेबल देख लेना. बिकॉज द रेट ऑफ फॉल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन the rate of fall of these two curves, that is why its minimum point comes beforehand, yeah, comes early. Then after that, after minimum point, all these three, they after their respective minimum points, all these three curves they start increasing. ये देखो, इस minimum point के बाद it has started increasing. ये ABC के minimum point के बाद it has started increasing. ये minimum point के बाद it has started increasing. मतलब आप ऐसे बना सकते हो, you can make point कि after reaching their minimum points, all these three cost curves they start increasing. Before minimum point they are falling, they are diminishing, but after minimum point they start increasing. That means कि भाई after minimum points, if still output is increased, more things are produced, then instead of getting benefits, the producer has to suffer increase in their costs. उसके अपने पास से खर्चे बढ़ जाते हैं, increase हो जाते हैं, अपने पास से expenditure increase हो जाते हैं. ठीक है, that is why these are increasing. Then उसके बाद फिर आप एक और पॉइंट बना सकते हो, जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ ABC एज वेल एज AC. ठीक है, तीन चार पॉइंट्स हो गए. उसके बाद आप लिखोगे द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. ये देखो, ये सबसे ज्यादा स्पीड से, जो लाइन ऊपर होती है वो सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ती है, जो लाइन सबसे नीचे होती है वो उसके कम होने की स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो हियर वी कैन मेक वन मोर पॉइंट कि रेट ऑफ increase of this marginal cost that is greater than the rate of या speed of increase of these average and average variable cost. ठीक है, okay. Now in this manner you will be able to make at least 4 or 5 points can be made. Now next question which can come to you in the paper, that is explain the relation between average cost and marginal cost. इसके comparatively this is more important, ज्यादातर ये आता है. Now average and marginal cost का relation again in the same manner, जो ऊपर बोला है वैसे ही हम बोल सकते हैं. Like in the beginning, as output is increased, then both average and marginal cost they are falling. ये दोनों कम हो रही है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है. So पहला पॉइंट हो गया कि in the beginning, as output is increased, both these cost curves come down. Full stop. Number 2 हो जाएगा minimum point of marginal cost comes early as compared to minimum point of एवरेज कॉस्ट. ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू ये यहाँ पर आ रहा है, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आउटपुट की, ये पॉइंट पहले आ रहा है, एंड दिस पॉइंट, ये उसके बाद आउटपुट इज स्टिल इंक्रीजिंग, दिस पॉइंट इज कमिंग लेटर.
So that means minimum point of marginal cost comes early as compared to minimum point of average cost. ये number 2 हो गया. Number 3, marginal cost passes from the minimum point of average cost. इसको ये कट करके जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है. तो हमारा नंबर 3 विल बी मार्जिनल कॉस्ट passes or intersects or cuts the minimum point of average cost. Number 3 हो गया. Number 4, after this intersection, after this passing from this minimum point, both marginal cost and average cost, they are increasing. दोनों लाइनें ऊपर जा रही हैं. दोनों लाइन्स ऊपर जाने का मतलब cost is increasing. ठीक. उसके बाद last point which can be made that speed या rate of increase in marginal cost is more than the speed या rate of increase in average cost. Reason, क्योंकि ये marginal cost value ऊपर है, तो पता लगाना हो कि किसकी वैल्यू ज्यादा. तो इसको अगर हम ऐसे इधर से वैल्यू चेक करें वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, वैल्यूज आर इंक्रीजिंग अपवर्ड, 0 1 2 3 4 आगे कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है. तो ये वैल्यू जो लाइन ऊपर है इसका मतलब ये वाली लाइन इसकी वैल्यू ज्यादा है. तो पॉइंट कैन बी मेड दैट स्पीड ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन दैट ऑफ एवरेज कॉस्ट. ठीक है. एक लास्ट में पॉइंट और, अगर इफ यू वांट यू कैन मेक that both these cost curves they are of U shape. ठीक है. ये U shaped की curves हैं. इसका थोड़ा सा और extend करना हो you can, but वो थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगता. Otherwise इसको थोड़ा सा और ऊपर करना है, you can do that also. ठीक है. तो in this manner you will get 4-5 points. And please don't write the meanings of ACMC. Now what happens, मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए either this or this कि रिलेशन एक्सप्लेन करिए. 99% of the students they waste time in writing the meanings of these terms. अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन है 3 या 4 मार्क्स का, मीनिंग हैज नॉट बीन आस्क्ड, उसको नहीं बताना है आपने, उसकी जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली यू गिव दिस हेडिंग, ये है या ये है, व्हाटएवर इज आस्क्ड, गिव हेडिंग, ड्रॉ द डायग्राम, नो नीड ऑफ टेबल. ठीक है. कोई टेबल नहीं बनाना, सिंपली डायरेक्टली डायग्राम, जो भी रिलेशन है वो डायग्राम आप ड्रॉ करिए. उसके बाद नाउ यू मेक 3 or 4 points, जितने भी आपके points हैं. But my request is don't waste time in writing the meanings. Clear cut answer होना चाहिए. ठीक. So this part is comparatively important. Now next is you can see in your book in the end last page exercise based illustration से पहले एक पेज point दिया हुआ है, some specific relation between different costs, उसके नीचे दिया हुआ है. लास्ट में दिया है एमसी और एबीसी का रिलेशन, और ऊपर दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. तो एमसी और एबीसी का अगर सेपरेटली पूछा है तो यू कैन डू वन थिंग. जैसे यहाँ ये एवरेज कॉस्ट ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ एवरेज कॉस्ट की जगह आप ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ दिस एबीसी. शेप तो वही रहनी है, सारे पॉइंट्स भी वही रहने हैं, बस करना क्या है, एसी की जगह एबीसी लिखते जाना. ये है ना, ये वाली एबीसी. अब आप ध्यान से देखो, ये भी यू शेप्ड कर्व है, ये भी यू शेप्ड कर्व. बस आई जस्ट मीन टू से जो भी कर्व का नाम दिया हुआ है वो वाला आप डायग्राम ड्रॉ कर देना. एमसी हमेशा उसके बीच में से कट करके जाती है, चाहे ये एसी पूछा हुआ है चाहे एबीसी पूछा है. ठीक है. तो ये सिंपल है, दिस यू कैन डू सेम एक्सप्लेनेशन. उसके बाद जो मेन है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन टीसी एंड एमसी. नाउ हियर वी हैव टू ड्रॉ 2 डायग्राम्स वर्टिकली. Please don't draw horizontally. Vertically they are to be drawn because they are to be compared. Now what happens? यहाँ पर we are showing total cost, यहाँ पर we are showing marginal cost. Okay? Total cost के आगे जो components है ना वो नहीं दिखाने, उसकी there is no need, वो नहीं दिखाना. Fixed cost, variable cost, फिर जाके आप total बनाओ, nothing. Directly total cost की curve, ये वाली. आप अपने जरा 2-3 पेजेस पीछे करके देखो जहाँ पर हमने total cost का डायग्राम बनाया था. Let me show that also, just a minute. ये वाला, ये तो ये नाउ जो भी पीछे डायग्राम है उसमें वी आर शोइंग ओनली दिस पार्ट, ये सिर्फ ये दिखानी है टोटल कॉस्ट. नो नीड टू ड्रॉ दीज पार्ट्स बी सी एंड एफ सी, ये नहीं बनानी, ओनली ये वाला अपर पार्ट, ये टोटल कॉस्ट. ठीक है. यही वाला डायग्राम है वहां पे. सो अब हमने देखना है कि इनका क्या रिलेशन है विद एमसी. लेट अस सी. यस, सो दिस इज टोटल कॉस्ट. ठीक है. अब आपने क्या करना है, जो आपकी टोटल कॉस्ट कर्व है ना, आपने पहले देखा है कि इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट. ये ऐसी चपटी सी कनकेव सी शेप बनती है ना,
तो जहाँ भी कनकेव शेप होती है उसका मतलब उस चीज का जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो डिमिनिशिंग होता है। अगर आपको याद हो पीपीसी वाला कॉन्सेप्ट, उसमें पीपीसी कनकेव शेप थी ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी चीज के जो बढ़ने की स्पीड होती है इकोनॉमिक्स में उसको कह दिया जाता है मार्जिनल। तो मार्जिनल शब्द का मीनिंग होता है, मार्जिनल वर्ड इज नथिंग एल्स बट द रेट ऑफ चेंज। किसमें चेंज? उस चीज के टोटल में। मतलब किसी चीज के टोटल में जो चेंज आता है उस चेंज को ही दूसरे वर्ड्स में मार्जिनल वर्ड से कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक ये इंक्रीज कर रहा है एट ए स्लो रेट, एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो उसके बाद एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा डायग्राम में, उसके बाद आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग क्विकली। अब आप देखो वेरी केयरफुली, ये वाले पार्ट की शेप में, ये वाली शेप और ये वाली शेप, दोनों में डिफरेंस है। ये एकदम स्टीप स्लोप से बढ़ रही है, और देखो और मैं कैसे आपको बताऊं, स्पून होता है ना खाना खाते हैं, ये है देखो स्पून जो मुंह में डालते हैं कोई चीज खानी है, तो ये स्पून का अंदर वाला हिस्सा है ना, कुछ खाते हैं तो जैसे मुंह में डालते हैं कुछ चीज डाल के, ये है ये वाला कन्वेक्स शेप, ऐसे इंक्रीजिंग। और ये वाला हिस्सा देखो जैसे स्पून को उल्टा करके रखा हो, कुछ नहीं खाया उल्टा करके रख दिया, तो ये वैसी शेप है, ये स्पून सीधे स्पून की शेप है। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि ये जितनी देर तक ये इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग एट ए स्लो रेट, डिमिनिशिंग रेट, बट ये पॉइंट के बाद अब जो रेट ऑफ स्पीड है, अब ये बड़ी एकदम स्टीप स्लोप है, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ इट इज इंक्रीजिंग। ठीक, तो जो ये वाला पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLEXION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मीनिंग होता है कि भाई इस पॉइंट, ये एक ऐसे बोल सकते हैं ना जैसे मोड़ आता है कोई, टर्निंग पॉइंट, और सिंपल टर्निंग पॉइंट। भी पहले ये स्लो स्पीड से बढ़ रही थी, अभी एकदम तेज स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जहां भी एज पर योर डायग्राम आपने ये बाद में ड्रॉ करना है, जहां भी आपका ये पॉइंट आ रहा है वहां से ब्रिंग वन लाइन डाउनवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, दिस डायग्राम, उसी को नीचे ले आना। ठीक है, सो व्हेन इन द लोअर डायग्राम, ये सेकंड वाले पार्ट में, हियर व्हेन यू ड्रॉ योर मार्जिनल कॉस्ट, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट शुड कम ऑन दिस लाइन। दोनों का रिलेशन ये है। ठीक, मतलब कि जब तक ये टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, स्लो स्पीड से बढ़ती है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। ये देखो ये कम हो रही है, टोटल बढ़ रही है धीरे धीरे, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट इज कमिंग डाउन, इट इज फॉलिंग। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, व्हेन देयर इज टर्निंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट मार्जिनल कॉस्ट में आ जाता है मिनिमम पॉइंट, मतलब जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट कम्स हियर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस टर्निंग पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फुल स्टॉप करके फिर नंबर 3 आपने करना है। नंबर 3, आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, when total cost increases at a greater speed या at a faster rate या at an increasing rate, तो corresponding to this part marginal cost is also increasing. Now see carefully, this line is also moving upward, ये भी moving upward है। ठीक, तो both are increasing। तो हमारा पॉइंट बन जाएगा कि आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हेन टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट या फास्टर रेट या ग्रेटर रेट या स्पीड, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, corresponding to that marginal cost also increases। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक, so that means we can very easily understand the shape of marginal cost with the help of this total cost। या इनवर्सली कह दें, ऐसे भी आ सकते हैं कि बताओ मार्जिनल कॉस्ट और टोटल का क्या रिलेशन है, तो फिर पहले इसकी बात कर देनी है, बाद में इसके बारे में बोल देना। जो वर्ड पहले है, जैसे ये टोटल कॉस्ट है ना, तो ऊपर टोटल कॉस्ट का डायग्राम बना दिया। अगर हो कि बताओ कि मार्जिनल और टोटल का क्या है, तो भी चाहे आप ये डायग्राम बना दो, चाहे आप इस बात को पहले बोल दो कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स, तो आप कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट ए स्लो रेट। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, corresponding to that total cost has a this turning point, a point of inflection. Number 3, when marginal cost increases, corresponding to that part total cost also increases but at a faster rate, at a greater rate। बस ये 3 पॉइंट्स है हमारे। ठीक है जी, उसके बाद अपना प्लीज टर्न द पेज बैकवर्ड, वहां पे एक दिया हुआ है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। प्लीज डिलीट दिस, इट्स नो मोर इन द सिलेबस, बट आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट। और मैं बता देती हूँ इसका मीनिंग भी, बट पेपर में ये नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में हमारे सिलेबस में ओनली शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आते हैं।
बट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बिकॉज रीडिंग में कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मीनिंग इसका ये है सारे का, नाउ यू सी द शेप ऑफ LTC। L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रन, और कई की जगह S लिखा होगा, कई कॉस्ट के आगे S अल्फाबेट लिखा होता है। S मीन्स शॉर्ट रन और L मीन्स लॉन्ग रन, ठीक है। तो इसका सारे का मीनिंग ये है कि जो when we in economics when we say we there are two types of time periods, one is called short period, one is long period. So there is only one main difference, कि भी in the short period it becomes very difficult for the producers to bring changes in their factors. Some factors remain fixed and some factors remain variable. जैसे थोड़ा टाइम हो, मशीनें, बिल्डिंग, फैक्ट्री, परमानेंट वहाँ जो भी पावर सप्लाई के अरेंजमेंट किए हैं, वाटर सप्लाई के अरेंजमेंट किए हैं, वो पक्के रहते हैं, उनको रोज रोज नहीं कोई चेंज कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो शॉर्ट पीरियड में कुछ चीजें फिक्स्ड रहती हैं, कुछ एसेट्स आर फिक्स्ड एंड सम एसेट्स रिमेन वेरिएबल। रोज लेबर कितनी लगानी है, रोज रॉ मटेरियल कितना डालना है, रोज पेट्रोल कितना लगाना है, रोज मार्केट कितना आना जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है, दीज थिंग्स कैन बी चेंज्ड। बट रोज मशीनें नहीं चेंज हो सकती, रोज बिल्डिंग नहीं चेंज हो सकती, रोज फैक्ट्री नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड का करेक्टरिस्टिक होता है। तो शॉर्ट पीरियड में इसी करके, क्योंकि टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वाई कॉस्ट आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक को कह देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक को कह देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ऑन दी अदर साइड लॉन्ग पीरियड जो होता है, लॉन्ग पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल फैक्टर, देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर, ठीक। अब आप में से किसी के मन में आ रहा होगा कि भी लॉन्ग पीरियड में मशीनें कौन सी रोज ही बदली जाएंगी, या रोज ही कौन सी नई नई फैक्ट्री बना लेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि लॉन्ग पीरियड में प्रोड्यूसर्स कैन चेंज ऑल दीज थिंग्स। कैसे बदल सकते हैं प्रोड्यूसर्स? मान लो आप ही हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, मशीन कोई लगी हुई है, यू आर लिविंग इन फगवाड़ा, आप वहाँ पे यू आर डूइंग सम वर्क, प्रोड्यूसिंग समथिंग। अब आपका कुछ प्लान चेंज हो गया, आप सोचते हो कि आने वाले 10 years में या 5 years में मैंने फगवाड़ा में काम बंद करना है, नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय वर्क इन लुधियाना, जलंधर या किसी और कोई भी दूसरी जगह पे, यू वांट टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि थोड़े टाइम में, 1-2 दिनों में, 1-2 महीने में तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज फैक्ट्री है तो बेचना भी पड़ेगा, कुछ पैसों का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉन्ग टाइम जब आता है, 5 साल 10 साल, थोड़ा लंबा टाइम है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आप क्या कर सकते हो, you can sell your factory, you can sell your machines, you can sell your equipment। आप उसको सारे सामान को अपना बेच सकते हो। मशीन को बदली करने का मतलब उसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना, बेच के आप पैसे ले सकते हो, यू कैन गेट मनी आफ्टर सेलिंग ऑल दीज थिंग्स। then with the help of same money you will go to some new place, and again from the very beginning you will again establish, you will buy land, you will make your construct your building, you will start your factory, purchase machine, अपना सारा जो भी काम करना है नए सिरे से you will start again। बट वो कैसे हुआ, पुरानी जगह पे आपने सारा कुछ अपनी प्रॉपर्टी, अपना सारे एसेट्स को बेचा, you have converted all those assets in money form, पैसों में कन्वर्ट कर लिया, then you went to you are going to new place, and then with the help of same money now you will buy all those things again। मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, आपने सारे फिक्स्ड एसेट्स को रुपयों में कन्वर्ट कर लिया और नई जगह पे जाके अपना काम नए सिरे से स्टार्ट कर लिया। तो इसी को कह देते हैं वेरिएबिलिटी, चेंज लाया जा सकता है। बट अगर कोई कहे कि विद इन 1 week, विद इन 1 month, अब कोई फैक्ट्री और मशीनें बेचना कोई आसान काम नहीं है कि सब्जी और फ्रूट की तरह बेच दिया, चलो निकले और बेच दिया, इतनी जल्दी नहीं बिकता ये सब सामान को बिकने में, क्योंकि कोई लेने वाला भी होना चाहिए ना, सुटेबल प्राइस भी मिलना चाहिए। तो ऑल दीज प्रोसीजर्स टेक सम टाइम। तो लॉन्ग पीरियड इज सफिशिएंटली लॉन्ग इनफ कि यू कैन मेक ऑल दीज अरेंजमेंट्स, यू कैन स्पेंड सम टाइम एंड यू कैन ब्रिंग ऑल द चेंजेस। तो इस करके लॉन्ग पीरियड में देयर रिमेन्स नो फैक्टर फिक्स्ड, ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप डायग्राम देखो, जो LTC लिखा हुआ है वो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जब कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो जितना काम करोगे, जो बनाओगे उतना ही खर्चा आएगा, सारी वेरिएबल कॉस्ट ही है, ठीक है। बस ये है। तो आई वांट यू टू रीड, एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पेपर में नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है। सो नो नीड टू लर्न, बट ओनली यू कैन राइट अबाउट दैट हेडिंग रीडिंग ओनली, ठीक है जी। Now with this all our theory part has got over, सारा हमारा काम फिनिश हो गया। Now let us start our numerical work, equally important, पेपर में आ सकते हैं, थ्योरी का भी कुछ ना कुछ आ सकता है, न्यूमेरिकल का भी।
बट डोंट फील कि ओनली न्यूमेरिकल्स विल कम, ऐसा कुछ नहीं है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. सो बट बिफोर दैट, अब आप एक बार प्लीज रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज केयरफुली. मैं बोलती हूँ, आप अपने मन में साथ साथ में उसको रिकॉल करो, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू यूज ऑल दीज फॉर्मूलाज हियर एंड देयर. तो फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. नंबर टू, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट या क्यू. फिर और marginal cost is equal to total cost of n units minus total cost of n minus 1 units. Or if we want to calculate with the help of variable cost, then marginal cost can be TVCn minus TVC, total variable cost of n units minus total variable cost of n minus 1 units. Then average cost का एक और formula है, that is equal to average fixed cost plus average variable cost, ठीक है. Then marginal cost का एक और formula है, that is equal to change in total cost divided by change in output, ठीक. फिर average fixed cost का formula total fixed cost divided by Q, Q means output, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू Q इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. Similarly, average variable cost is equal to total variable cost divided by output. Cross multiply कर दे तो we get average variable cost into Q is equal to total variable cost. ठीक. अब जो बच्चे तो साथ साथ में करते हैं उनको तो समझ आ गया होगा, जो बेचारे नहीं करते उनको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, बस बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट कि रोज का काम जरा रोज कर लिया करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. सो नाउ प्लीज टेक आउट योर नोटबुक. डोंट राइट द सोल्यूशन, अपने आप करना है आपने. लेट अस स्टार्ट. प्लीज मेक राइट दीज फर्स्ट टू कॉलम्स ओनली. सिर्फ ये लिखने हैं आपने, आउटपुट कॉलम एंड टोटल कॉस्ट कॉलम. बाकी का नहीं लिखना, वो आपने खुद सॉल्व करना है. आई विल टेल हाउ टू सॉल्व. आउटपुट, आउटपुट को डिनोट कर दिया बाय Q एंड यूनिट्स आर 0, 1 एंड 2, ठीक है. यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर टेबुलर फॉर्म में प्लीज राइट 0, 1 एंड 2. देन सेकंड कॉलम विच इज गिवन टोटल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट रुपीज में है, ये लिखा है रुपीज. टोटल कॉस्ट वैल्यूज आर 12, 18, 21, 12, 18, 21, ठीक है. और हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ऊपर आप कहीं भी लिख लो, एक साइड पे यहाँ लिख लो फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ये दो चीजें निकालनी है, ठीक. अच्छा, अब लेट अस सी कैसे निकाल सकते हैं. अब आपको थ्योरी का भी थोड़ा दिमाग में रखना है सब चीजों को. नाउ अब आप चेक करो, ये हमें क्या दिया है, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, और 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे वी हैव बीन गिवन टोटल कॉस्ट, राइट. अब आपको अगर रिलेशन याद हो तो आपने देखा होगा जो वेरिएबल कॉस्ट वाला टेबल बनाया था उसमें जब कोई यूनिट ऑफ आउटपुट हैज नॉट बीन मेड तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है. तो दैट मीन्स कि जो ये वाली 12 है, ये वाली जो वैल्यू है 0 यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर, ये टोटल कॉस्ट इट इज होल ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट. ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है. 12 जो रुपीज है ये फिक्स्ड कॉस्ट है. क्यों फिक्स्ड कॉस्ट है? क्योंकि जब कुछ भी नहीं बनाया तो एट दिस 0 लेवल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, और अगर ये 12 वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल. तो 12 प्लस 0 ये 12 है, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक. पहली चीज आपने ध्यान में ले आना. फिर आपने इसके बाद, मैंने एंड में बनाया पर आपने एंड में नहीं बनाना, ये इसके बाद आपने कॉलम बनाना है ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. गिव हेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट. तो अब ये जो 12 है फिक्स्ड कॉस्ट, ये लिखेंगे तीनों बार लिख देंगे 12, 12, 12. रीजन अब आपको याद है, फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो टेबल बनाया था उसमें वैल्यू क्या लिखी थी, 10. चाहे 0 आउटपुट है तो भी 10 है, 1 आउटपुट है तो भी 10 है. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. तो अगर ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 12 है तो आगे जितनी मर्जी आउटपुट बनाई जाए, यहाँ 2 ही दिए हो ना, 1 और 2 दिए, आगे जितना मर्जी हो ये सेम ही रहेगी. अगर यहाँ 12 है तो इट विल रिमेन सेम, हियर आल्सो 12, हियर आल्सो 12, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद निकालना है हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो फॉर्मूला में यहाँ स्पेस नहीं था तो आई हैव रिटन डाउन, बट आप यहाँ इसके सामने लिखेंगे टीवीसी इज इक्वल टू, नाउ क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला फर्स्टली राइट डाउन टोटल फिक्स्ड प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो अब हमने निकालना है ये टोटल वेरिएबल.
तो क्या करना चाहिए, ये टोटल कॉस्ट में से वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, ये इधर आके माइनस हो गया, टोटल में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो तो बाकी बच जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो नाउ मेक द कॉलम, माइनस करो ये टोटल कॉस्ट में से, ये 12 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 12, ये आ गया 0। फिर अगले टोटल कॉस्ट है 18 माइनस ये फिक्स्ड कॉस्ट 12, तो 18 माइनस 12 ये आ गया 6। फिर नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इज 21, तो इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए, 21 माइनस 12 ये आ गया 9। ठीक है, तो वी हैव गॉट दिस कॉलम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट को, अगर हमारे पास दोनों ही है ना, टोटल एंड टोटल वेरिएबल, तो देन वी शुड ट्राई टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। उसका कारण ये है कि मार्जिनल कॉस्ट होती है चेंज, और चेंज होता है मेनली टोटल कॉस्ट में, मेनली चेंज आता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है, वो तो बेचारी जो है सो ही रहना है। चेंजेस आते हैं मेनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट 0 है, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट डिसाइड, या कुछ लिख ही नहीं सकते, मतलब नथिंग कैन बी मेंशन्ड हियर, तो नील का साइन। ठीक है, ये वाला डैश हाइफन जो होता है ना, नील का साइन। अब हर एक नेक्स्ट में से पिछले वाली टोटल वेरिएबल माइनस करते जाओ। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, मतलब ये फर्स्ट यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस फर्स्ट माइनस फर्स्ट 1 माइनस 1 0 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ गया 6 माइनस 0, ये आ गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट VC वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेकेंड माइनस 1, तो सेकेंड माइनस 1 का मतलब उसके पहले वाला, दो में से एक माइनस कर दो, मतलब फर्स्ट यूनिट की, तो 9 माइनस 6 ये आ गया 3, ये वाला। ठीक है जी, सो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। लेट मी सी, ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। ठीक है, तो आपको ये मैंने ना डार्क करके लाइन इस करके लगाई है कि दीज वैल्यूज वर गिवन, और ये हमने निकालनी है। तो व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो ट्राई करना है कि जो चीजें क्वेश्चन में पूछी हुई है ना, कीप दोज कॉलम्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट साइड। ये मैंने जल्दबाजी में इधर कर दिया, बट होना क्या चाहिए था, ये वेरिएबल और ये मार्जिनल वाले कॉलम बिल्कुल एंड में रखने हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये पूछा था और ये बच्चे ने किया। ठीक है, चलो एक और करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। नाउ प्लीज राइट दीज 2 कॉलम्स ओनली। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 0, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। यूनिट्स ऑफ आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6, इट इज गिवन 0 से लेके 6 तक। उसके बाद हमें कॉलम दिया है टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट की वैल्यूज जो दिया हुआ है दैट इज 60 90 100 105 115 135 180। ठीक है, हमें वी आर गिवन दीज 2 कॉलम्स ओनली, और कहा गया है ऊपर आप लिख लो एक साइड पे, फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड, ये एंड है, एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये निकालने हैं। फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब क्या करना है, फर्स्ट बना लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का कॉलम। ठीक है, अब कैसे पता चले कि कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, सबसे इजी वे, आप देखो ना, 0 लेवल ऑफ आउटपुट दिया है, तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है वो सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है, क्योंकि उस समय वेरिएबल कॉस्ट तो 0 थी, तो जो भी टोटल कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है, वो फिक्स्ड कॉस्ट ही है। इस क्लास के बाद आप अपना टोटल कॉस्ट वाला जहाँ टेबल बनाया था ना, वहां से आप एक बार चेक करना जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो ये हो गई, जो 0 लेवल पे हमारी टोटल कॉस्ट है 60, दैट मीन्स इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अब दूसरा हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, कोई भी आउटपुट का यूनिट हो, चाहे बनाया चाहे नहीं बनाया, तो ये अगर 60 है तो इट विल रिमेन 60 फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, सभी में 60 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप बनाइए वेरिएबल कॉस्ट, चाहे आप VC लिख लो या TVC लिख लो, एक ही बात है, जो जैसे भी ठीक लगे। नाउ वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारे पास ये दोनों कॉलम है, बस कुछ नहीं करना, ये टोटल में से फिक्स माइनस करते जाओ, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। करिए, अपने आप करिए, करके फिर यू कैन चेक फ्रॉम द टेबल। यस, वेरी गुड।
हिना तनेजा, आपका वीडियो ऑन नहीं होता बेटे, पता नहीं आप सुन रहे हो कि नहीं। यस, हरी अप हरी अप। कर लिया, वेरी गुड हिमानी। हिमानी ने थम्स अप कर दिया, मुझे पता चल गया कि इसने कर लिया है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, तो अब आ गया हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। अब इस वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से नाउ वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूला इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। ठीक है, n मतलब आउटपुट का यूनिट। तो अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है विच यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कुछ भी नहीं बनाया। तो मार्जिन जब यहाँ 0 हो तो मार्जिनल कॉस्ट के आगे आपको नील साइन लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं, जब कुछ बनाया ही नहीं तो इसका मतलब कोई चेंज भी नहीं आया होगा। चेंज किस में नहीं आया होगा? वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं है, कोई रॉ मटेरियल यूज ही नहीं किया है, तो ये नील का साइन आएगा। ठीक है, बट उसके बाद फिर है फर्स्ट यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन। एन मतलब फर्स्ट यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, ये फर्स्ट यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। तो n है हमारा 1, 1 माइनस 1 इसका मतलब 0 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। तो 0 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अगेन इट इज 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक, उसके बाद नाउ सेकेंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है? सेकेंड यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। n है हमारे पास यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 30। इतना लंबा चौड़ा बोलने की बजाय सीधा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हर एक नेक्स्ट में से पिछले वाले को माइनस करते जाओ। 40 माइनस 30 10। ठीक है, प्रोसीजर वही है। देन 45 माइनस 40 5, 55 माइनस 45 10, 75 माइनस 55 20, 120 माइनस 75 45। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए एक और तरीका है आपके पास। आप एक बार ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम बनाते हैं ना एफ और सी एफ बनाते हैं, उस वे से भी आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे ये ऐसे क्रॉस टोटल करना है, 0 प्लस 30 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 20 75, 75 प्लस 45 120। ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये कॉलम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो लेट मी सी द टाइम, ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। तो मैं आपको एक वैल्यूज बोल देती हूँ, आप उसको कैलकुलेट करिए जरा क्विकली, राइट डाउन। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर, कॉलम वाइज लिखना है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 0 1 एंड 2, 0 1 2। देन नेक्स्ट कॉलम टोटल कॉस्ट, total cost is given 75 95 110, 75 95 and last है 110। ठीक है, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेट marginal cost, average fixed cost and average variable cost. Now you do this. अगर नहीं होगा then I will tell the solution tomorrow. Okay, tomorrow या after the class because time हो जाना है तब तक। This is unsolved question, मैंने नहीं किया, आपको खुद करना पड़ेगा। अब आप देखो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट है वही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो दैट इज 75। तो पहले आप बनाइए कॉलम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, सभी के नीचे 75 75 75। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम आप बनाओ वेरिएबल कॉस्ट का, फॉर्मूला हो जाएगा उसका टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट है 75 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 75, 0, वेरिएबल कॉस्ट की पहली वैल्यू आ गई 0। फिर उसके बाद 95 माइनस 75, ये आ गया 20। फिर उसके बाद कितना है टोटल कॉस्ट 110 माइनस 75, ये आ जाएगा 35। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया टीएफसी टीवीसी।
अब इनको फॉर्मूले क्या है, एवरेज फिक्स का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू मतलब आउटपुट। फिर एबीसी का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट तो भी आपने ऊपर किया ही है क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला ये। अब आप निकालो क्विकली। इट्स ऑलमोस्ट 11:40, मीटिंग विल एंड एट एनी टाइम। आपने खुद निकाल लेना है क्वेश्चन, और कल मैं आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है जी।